Very good morning. I hope हम start करना चाहिए. So हम पढ़े थे. Good morning, sir. Good morning. So previous class we have discussed about like intermittent exotropia and intermittent exotropia part, and the classic and the types of exotropia. And so today we only discuss. Today we are going to discuss about the constant exotropia part. So there are in exotropia there is one constant exotropia and the intermittent exotropia. So if you think about the intermittent exotropia, so according to the distance and near relationship. So here you can see I have shown a classification. So this is like according to like distance and near relationship, the intermittent exotropia classified into four categories, like one pseudo divergence, true divergence, basic, and convergence weakness exotropia. So and we have already discussed that part, what is pseudo divergence, true divergence, basic, and convergence also in treatment part. So I'm not going to further discuss about that part. So we're moving to other topic like constant exotropia. So what is constant exotropia? Similarly, constant exotropia also having four components. So slowly we'll go moving slowly. We'll discuss about like how many types of constant exotropia and how we'll diagnose that. So constant exotropia is encountered most often in older patient with the sensory exotropia or patient with a long-standing intermittent exotropia that hasn't decompensated. Usually, intermittent exotropia in the exotropia that will compensate with the fusional mechanism. So by definition, in intermittent exotropia said that the intermittent exotropia usually getting cover or getting compensated by the fusional mechanism. If the patient, if the patients, some patient having like weak fusion or poor fusional mechanism or something disease related to the brain that hamper the fusional mechanism, so that patient is converted to the constant part. So now the but like Fourier, the intermittent exotropia is latent, sometimes on and off, like or sometimes it's latent parts, or sometimes it's hidden, and sometimes it's manifest. Now the completely the intermittent exotropia is converted to the constant exotropia. That means जब हम intermittent exotropia होता है, तो intermittent exotropia में क्या होता है हमारा, यूजुअली इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया फ्यूजनल मैकेनिज्म जो होता है, तो उसके साथ कंपेंसेट करके हमारा आई क्या करता है, कंट्रोल हो जाता है. जो हम पढ़े थे कहाँ पे, हम लोग डिस्टेंस और नियर रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया यूजुअली होता है. तो कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया में क्या होता है, वही इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है, कभी कभी उसका फ्यूजनल मैकेनिज्म होता है, वो काम ठीक से पेशेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं करता है. तो वो नहीं होने के कारण से क्या डीकम्पेंसेटेड फेज को चले. कंपेंसेट मतलब उसके हेल्प करना, मतलब फ्यूजन को हेल्प करता है कि एक्सोट्रोपिया पार्ट को हेल्प करता है टू कंपेंसेट करने के लिए. लेकिन डीकम्पेंसेटेड मतलब क्षति मतलब उसको हार्म करता है, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है कि एक्सोट्रोपिया पार्ट कवर हो जाए टू द फ्यूजनल मैकेनिज्म. वो होता है डीकम्पेंसेटेड मतलब अभी पूरा मैनिफेस्ट हो गया और कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया को अभी कन्वर्टेड हो गया. सो दैट इज डेफिनेशन द written here. A constant exotropia is encountered most often in older patient with a sensory exotropia or लिखा है or patient with long standing intermittent exotropia that has been decompensated. long standing intermittent exotropia अगर फ्यूजन मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करता है, तो फ्यूजनल मैकेनिज्म कंपेंसेट नहीं हो पाता है, तो क्या करता है वो डीकम्पेंसेट होके कंस्टेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं. मतलब दैट मीन इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया लाइक कन्वर्टेड टू कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया. ये एक डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन फर्स्ट लाइन लिखा है, तो कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया इज कोई सेंसरी. कभी मान लो कोई किसी के टेक एन एग्जांपल, कोई मान लो यूनिलैटरल कैटरेक्ट हो गया, कोई एक अंग में सर्जरी हो गया, एक अंग में ट्रॉमा हो गया, वो होने के कारण से क्या होता है, आई डिबेट कर जाते हैं. दैट मींस विद द सेंसरी कॉज, because for sensory cause eye is good moving towards the like outer deviation, so that is called constant exotropia that like persists throughout the life. If you don't intervene that particular, if you don't intervene for the surgery, any kind of surgery or therapy, so that will persist throughout the life. So that is called constant exotropia. Correct. Constant exotropia is encountered most often in older patients with a sensory part. Sensory part is something, if some patients are with cataract, some patient with retinal disease, so that patient converted to like constant part. Now the exotropia is getting manifest more and more throughout the life if you don't intervene the surgery. Okay. सेकेंड डेफिनेशन बता रहा है कि पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया. सो यूजुअली इज इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया
compensate with the fusional mechanism. So if some patients having poor fusion of something happens, something visual cortex related problem, accommodation related problem, now the thing is that fusion is not getting sufficient that particular age, so intermittent exotropia now is getting decompensated by the fusion and getting more and more manifest and converted to the constant part. So that is called constant exotropia. Have you understood that part? आपको समझ में आया? एक और बार बताता हूँ, लाइक कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया का डेफिनेशन ही बताता है. Either constant exotropia is two things like associated to two phenomena, like one is sensory part and as is decompensated intermittent exotropia part. Sensory part, take an example of sensory. Suppose one unilateral cataract हो गया, कुछ रेटिनल सर्जरी, ओकुलर पैथोलॉजी हो गया, मान लो कुछ ब्रेन का पैथोलॉजी, एम्ब्लियोपिया हो गया, बहुत एक आंख बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव होने के कारण से वही सप्रेस्ड है, वो क्या डेविएटेड हो गया, वो दैट्स लाइक सेंसरी पार्ट हुआ. सेंसरी पार्ट हुआ, वो क्या हुआ, आंख धीरे धीरे आउटर डेविएशन हो गया. So सेंसरी मतलब लाइट का फोकस होने में दिक्कत हो रहा है और वो लाइट पास करने में ब्रेन को दिक्कत होता है. तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या डेविएट होते जा रहे हैं बाहर की तरफ. So that is called one definition of constant exotropia. Another is part is intermittent part. So the in intermittent part, what will happen in intermittent part? So in intermittent, if you see the intermittent part, intermittent usually क्या करता है, फ्यूजनल मैकेनिज्म के साथ कंपेंसेट होके क्या होता है, क्या होता है, कंपेंसेट हुआ होता है, मतलब क्लियर क्या होता है, रिजल्व हो जाता है. रिजल्व मतलब लाइक स्ट्रेट हो जाता है. कुछ कंट्रोल के साथ क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है, इंटरमीडिएट पार्ट पता नहीं चला, ऑन एंड ऑफ होता है. तो कभी कभी किसी पेशेंट्स का फ्यूजनल मैकेनिज्म होता है वो अच्छे से काम नहीं करता. दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ रीजन, लाइक इडियोपैथिक हो सकता है, any kind of brain related issue, accommodative related, convergence related, something related to that issue, जहाँ पे फ्यूजन मैकेनिज्म कंपेंसेट नहीं हो पाता है. फ्यूजन में जो फ्यूजन का कैपेसिटी होता है, फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाता है, और अगर होता है भी मैं मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाता है दैट पर्टिकुलर पेशेंट. वो क्या होता है, वो धीरे धीरे इंटरमिटेंट वाला पार्ट कंस्टेंट को शिफ्ट हो जाता है. इंटरमिटेंट में यूजुअली क्या होता है, ऑन एंड ऑफ दिखता है. कभी आपको अगर फ्यूजन उसका अच्छा होगा तो कभी दिखता नहीं है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ऐसे करके होता है. लेकिन इंटरमिटेंट जब कंस्टेंट को शिफ्ट हो जाता है, ऑलवेज आपको मैनिफेस्ट लगेगा. जैसे ही पेशेंट आपको आएगा, जैसे एक आंख डिविएटेड होते लगेगा. सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया. ओके, सो द कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया यूजुअली क्या होता है, वो पर लाइक more than 30, more than 40 प्रिज्म डायप्टर, 40 प्रिज्म डायप्टर रहता है. और 40 प्रिज्म डायप्टर को हम लोग अगर हेलो 40 प्रिज्म डायप्टर को फ्यूजन लाइक कंपेंसेटरी फ्यूजनल मैकेनिज्म से कंपेंसेट करने के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफर फॉर सर्जरी. सो नो नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ like non-surgical management. So go straight go ahead to surgery, or like do the extracellular muscle surgery, and this is the major part. जैसे हम लोग ने पढ़े कि इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का लाइक अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड नियर रिलेशनशिप अगर पकड़ा जाए डुआन्स क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है हम लोगों का, फोर टाइप्स ऑफ क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है. क्या क्या होता है ना, सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया, ट्रू डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया, बेसिक एक्सोट्रोपिया, अनदर इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया, अनदर इज कन्वर्जेंस वीकनेस एक्सोट्रोपिया. सो वही हो गया इंटरमीडिएट वाला पार्ट गया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड नियर रिलेशनशिप. अगर आप बात करिए कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया का, सो अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया वो फोर टाइप्स है. क्या क्या है, तो फर्स्ट है कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया लाइक इन्फेंटाइल एक्सोट्रोपिया. सेकंड आता है सेंसरी डिप्रिवेशन एक्सोट्रोपिया. थर्ड आएगा डीकम्पेंसेटरी इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया. फोर्थ आएगा कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया. सो एक एक करके पढ़ेंगे. So what is congenital exotropia, infantile or congenital exotropia? So infantile exotropia is much less common than infantile exotropia. So it is prefer both age 6 months with a large constant deviation. Although the infants with a constant exotropia may be otherwise healthy, or there instead of risk of having associated neurological impairment or craniofacial disorder. A carefully development history is important, and the referral of neurological access should be considered if there is indication of delay. So ये बोलता है कि infantile exotropia है लेस कॉमन दैट इन्फेंटल एक्सोट्रोपिया. यूजुअली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा जो फ्यूजनल मैकेनिज्म होता है, अकोमोडेशन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम लेता है डेवलप करने के लिए. और उसी टाइम पे क्या होता है, और फ्यूजनल मैकेनिज्म अगर डेवलप करते हैं ना, उस टाइम फ्यूजनल मैकेनिज्म अकोमोडेशन बहुत ज्यादा होता है, होना चाहिए. तो हमारा क्या होता है, लेस कॉमन,
इसोट्रोपिया मिल सकता है, लेकिन एक्सोट्रोपिया मिलना इससे क्वाइट लेस कॉमन होता है। क्यों होता है? अगर भी मिलता है तो व्हाट आर द कॉज? सो आपको ये करना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर भी हो सकता है, जिसके बदले से क्या होता है, ये एक्सोट्रोपिया हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि इन्फेंटाइल एक्सोट्रोपिया इज मच लेस कॉमन देन द इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया। इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया यूजुअली मिल जाता है बस 6 मंथ 1 ईयर लाइफ में मिल जाता है, लेकिन एक्सोट्रोपिया मिलना इट्स क्वाइट मतलब थोड़ा लेस कॉमन है। तो क्यों अगर भी मिलता है, यूजुअली हमारा फ्यूजनल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अच्छा से काम करता है ड्यूरिंग टाइम, उसमें नहीं होना चाहिए। अगर भी आपको मिलता है कंस्टेंट एक्सोट्रोपिया मिला, तो आपको क्या करना है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रूल आउट करना है कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट उसको कंसीडर करना है दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वाई इट्स कॉल्ड मच लेस कॉमन बोला गया है। क्यों लेस कॉमन? क्योंकि जब बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, जो हमारा न्यूरोलॉजी, जैसे हमारा, मैंने आपको एक बार टॉपिक में पढ़ाया था विजुअल एक्टिविटी, विजुअल डेवलपमेंट डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा, पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में पढ़ाया था मैंने। उस टाइम पे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो विजुअल डेवलपमेंट होता है, तो यू ड्यूरिंग 6 to 7 मंथ्स ऑफ लाइफ हमारा अकोमोडेशन की धीरे धीरे कन्वर्जेंस धीरे धीरे डेवलप करने स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, यूजुअली फ्यूजन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो उस टाइम पे आपको जो मतलब डेविएशन, ऑकुलर डेविएशन नहीं मिलना चाहिए। अगर भी मिलता है तो बहुत ज्यादा, तो इसोट्रोपिया कॉमन है, इसोट्रोपिया मिल सकता है, इसोट्रोपिया कॉमन है, मिल सकता है। लेकिन एक्सोट्रोपिया मिलना लेस कॉमन, अनलाइकली है। अगर आपको एक्सोट्रोपिया मिलता है तो व्हाट आर द कॉजेस, आपको तो पहले रूल आउट करना है। मान लो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ है, बेबी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, जिसके वजह से ये आई डिबेट हो रहा है। अगर मतलब कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया इन दैट पर्टिकुलर एज 10 मंथ्स या 1 ईयर किड में मिलना थोड़ा अनलाइकली है। अगर मिलता है तो फर्स्ट आप थिंग रूल आउट कर, ऐसे नहीं फर्स्ट थिंग यू गो हेड विद सर्जरी। तो सर्जरी करने से पहले, कि आपको फल इंटरवेंशन करने से पहले क्या होता है, हम लोग एक बार न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल टोटल डिसऑर्डर को रूल आउट करते हैं कि बेबी इज देयर हैविंग एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नॉट, ब्रेन रिलेटेड इशू और नॉट, एनी सिस्टमिक डिसऑर्डर दैट एसोसिएटेड विद एक्सोट्रोपिया। उसको हम रूल आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये था हमारा कंस्टेंट सॉरी कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया, इन्फेंटल एक्सोट्रोपिया। यूजुअली हमारा जो एक्सोट्रोपिया होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब लाइक 50 40 45 डायप्टर, 50 डायप्टर तक हो जाता है। ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है इन्फेंटल एक्सोट्रोपिया। तो ये था हमारा इन्फेंटल एक्सोट्रोपिया। समझ में आया? हैव यू क्लियर दैट पार्ट? हैव यू अंडरस्टूड दैट? समझ में आया? यहाँ तक Yes, sir. क्लियर है? तो मान कर सब, टेक एन एग्जांपल, इफ समथिंग इज लाइक if everything is doing well, baby doesn't have any kind of neurological disorder, any kind of systemic disease that associated with exotropia, doesn't have any kind of neurological disorder, systemic disease. So now we are going to go ahead with the surgery for the 6 month baby or 1 year kids. Why very early intervention needed for that particular age group? Because if you do early intervention, so here the last point you can say, if you do early intervention, the surgery is early intervention, that the baby is like monocular fixation with gross binocular vision will be restored, धीरे धीरे रिस्टोर हो जाता है और भी अच्छा होने की चांसेस हो जाता है। अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे, सारे डेवलपमेंट होता है, जो बेबी का जो फ्यूजन मैकेनिज्म होता है, अकोमोडेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, स्टीरियोप्सिस होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे हैम्पर होने लगता है और धीरे डिफेक्टिव होने लगता है और इनसफिशियंट होने लगता है। तो अगर हम अर्ली सर्जरी करते हैं, सर्जरी कर आई को स्ट्रेट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा आई स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, आई स्ट्रेट होने के कारण से क्या हुआ, फ्यूजल मैकेनिज्म अच्छा काम करने लगेगा, फिर धीरे धीरे बच्चा अपने नॉर्मल विजुअल टास्क और नॉर्मल उसका ऑकुलर ग्रोथ होने लगेगा। तो हमारा अर्ली इस काइंड ऑफ पेशेंट को कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया, इन्फेंटल एक्सोट्रोपिया को जितना अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए कर देना चाहिए। लेकिन इसोट्रोपिया को आप रूल आउट मतलब वेट कर सकते हो, क्योंकि इसोट्रोपिया का अकोमोडेशन कन्वर्जेंस ठीक हो रहा है और हम पे ग्लास देने से ठीक हो जा सकता है। लेकिन एक्सोट्रोपिया में पार्ट में क्या होता है, हमारा बिल्कुल फ्यूजनल मैकेनिज्म कट गया है, तो उसको क्या करना है, उसको सर्जरी करके, अर्ली इंटरवेंशन करके, सर्जरी करके क्या करना है, आई को स्ट्रेट करना है। अगर स्ट्रेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बाइनोकुलर विजन हो गया, स्टीरियोप्सिस हो गया, फ्यूजन हो गया, धीरे धीरे क्या करे, बढ़ने लगता है, अच्छा होने लगता है। ठीक है, क्लियर? So now coming to sensory part, as I said, sensory exotropia.
in previously I have discussed this sensory exotropia का मतलब ये है sensory मतलब any kind of sensory related issue like any suppose any kind of brain related issue, any kind of retina related issue, any kind of the कोई deprivation हो गया, deprivation मतलब cataract हो गया, vitreous hemorrhage हो गया, corneal related corneal scar हो गया, तो that cause क्या होता है फ्यूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट फोकस नहीं होगा, फ्यूजन नहीं हो पाता, लॉस ऑफ फ्यूजन, तो होने के कारण से क्या होता है आई डिबेट कर जाता है. सेंसरी कॉज क्या क्या होता है, so any kind of the severely reduce the vision in one eye में होता है, in example anisometropia, corneal lens opacity, optic atrophy, hypoplasia, retinal lesion or amblyopia can cause sensory exotropia. It is known why some person become isotropic or other exotropy after unilateral vision loss. ऐसे मतलब ये जो कॉज होता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसे नहीं कि सारी कंडीशन होता है कि सारी जो कंडीशन होगा इस कंडीशन में ओनली होगा आपको क्या होगा एक्सोट्रोपिया होगा, ओनली होगा इसोट्रोपिया होगा, ऐसा नहीं है. तो पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसका एक्सोट्रोपिक हो जाता है और किसी का इसोट्रोपिक हो जाता है. कॉर्नियल डिजीज होता है, कॉर्नियल स्कार हो गया, रेटिनल लीजन हो गया, ऑप्टिक एट्रोफी हो गया, बहुत ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव लाइट फोकस ही नहीं हो पाएगा. अगर लाइट अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगा रेटिना पे, तो रेटिना किस इंपल्स देगा ब्रेन को, तो ब्रेन भी रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो उसके कारण से हमारा कंट्रोल लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फ्यूजनल एबिलिटीज. तो होने के कारण से क्या होता है धीरे धीरे आई डेबिट कर जाता है. उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग सेंसरी एक्सोट्रोपिया बोलते हैं. दैट मींस एसोसिएटेड एनी काइंड ऑफ डिजीज, दैट डिजीज इज लीड टू द एक्सोट्रोपिया पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेंसरी एक्सोट्रोपिया. समझ में आप? क्लियर? Yes, sir. Okay. ठीक. Now the coming to third part is consecutive exotropia. So what do you mean by consecutive exotropia? Consecutive exotropia is nothing but suppose patient पहले हमारा इसोट्रोपिक था, ठीक है, पहले पेशेंट इसोट्रोपिया के लिए ऑपरेट हुआ था, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है ना, कभी कभी ओवरडोज हो जाता है. मान लो उसका 30 प्रिज्म डायरेक्टर इसोट्रोपिया था, आपने 30 प्रिज्म डायरेक्टर के लिए इसोट्रोपिया करने के लिए लिए. जब सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट लेते हैं. ड्यूरिंग द मेजरमेंट कभी 30 प्रिज्म कर दे, वो हमारा क्या 40 प्रिज्म के लिए हो गया, 40-45 के लिए 15 डायरेक्टर का ओवरडोज हो गया. तो ओवरडोज होने के कारण से क्या हुआ, वो इसोट्रोपिया पहले था, पोस्ट सर्जरी क्या हुआ एक्सोट्रोपिक हो गया. तो दैट इज कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया. मतलब कंसेक्यूटिव इसोट्रोपिया था और पोस्ट ऑपरेटिव क्या हुआ, ऑपरेट करने के बाद क्या होता एक्सोट्रोपिया हो गया. दैट उसको हम बोलेंगे consecutive exotropia. So consecutive definition is consecutive exotropia that occurs after a period of esotropia. The period of esotropia is called consecutive exotropia. In rare case, exotropia may be spontaneously developed in patient who was previously esotropic but who had not had surgery, और post surgical exotropia हो सकता है. कभी कभी पेशेंट सर्जरी अपने आप इसोट्रोपिया ठीक होने के बाद एक्सोट्रोपिया हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया क्या मिलता है पोस्ट सर्जिकली. कभी कभी क्या होता है हम लोग ओवरडोज सर्जरी हो जाता है, डोज जो सर्जरी का डोज होता है ओवरडोज हो जाता है. 30 के करने 30 प्रिज्म डायरेक्टर के लिए करना चाहिए था, हम लोगों ने 50 के लिए कर दिया या 60 के लिए कर लिया. मतलब कभी कभी हो जाता है 30 के लिए, कभी 50 45 कभी कभी मिस्टेकली हो जाता है. होने के कारण से क्या होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारा कंसेक्यूटिव पार्ट को हो जाता है. तो कंसेक्यूटिव जो मतलब एक्सोट्रोपिया हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड